Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 4th of May 2021, Tuesday. Inspiration of the day is there is no excuse for not trying. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RBI's LEF FX intervention COVID push up short term premium. A glut of dollars in the interbank market has pushed up cash spot forward rates higher as contract mature and foreign banks hit by rules coming in the way of spending the greenback to the US Treasury struggle to clear their dollar while public sector banks stayed put. आज की जो पहली न्यूज़ है थोड़ी सी टेक्निकल है. आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एज आई कैन. न्यूज़ को समझने से पहले यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है. द वर्ड ग्लट हेयर मीन्स भरमार. हिंदी में ग्लट को बोलते हैं भरमार. इंटरबैंक मार्केट क्या होता है? बेसिकली इंटरबैंक मार्केट इज लार्जली एन अनरेगुलेटेड नेटवर्क of different banks or financial institutions in a global sort of networking that generally trade currencies between each other in order to manage the exchange rate and interest rate risk. So basically, interbank market is a largely unregulated network that consists of global network of different financial institutions, just like private bank, public bank, and that trade currencies between each other in order to manage the exchange rate and interest rate risk. And one of the very major participant of this network is private bank or are private banks. Even few interbank trading is done by bank on behalf of the large customers. Although most interbank trading is proprietary, meaning that it takes place on behalf of the bank's own account. Otherwise बैंक जो हैं वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पर भी ट्रेडिंग करते हैं, बट जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है वो बैंक के खुद के अकाउंट से होती है, खुद के बिहाफ पर होती है. And basically this interbank market is a subset of inter-dealer market, which is an over-the-counter venue where financial institution can trade a variety of assets classes among one another, either on behalf of their client or on behalf of their own account. So generally bank use this intermarket to manage their own exchange rate and interest rate risk. And one more very important thing, most of the transaction in the interbank market are of short-term duration, anywhere between overnight to 6 months. So these are the few key points related to interbank market. That is this terminology, interbank. Glut means bharmar. तो बहुत साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इंटरबैंक में जो बैंक होते हैं वो डिफरेंट करेंसीज के बीच में ट्रेड करते हैं कैश स्पॉट के फॉर्म में, फॉरवर्ड रेट के फॉर्म में, इन ऑर्डर टू मैनेज द एक्सचेंज रेट रिस्क और इन ऑर्डर टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो अपने रिस्क को स्पेक्यूलेट करने के लिए. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंटरबैंक जो मार्केट है उसमें जो डॉलर्स की वो भरमार ज़्यादा हो गई है. एंड दिस एक्सेस ऑफ डॉलर हैज़ पुश्ड अप द cash spot forward rate higher as contract mature and foreign banks hit by the rules coming in the way of spending the greenback to the US Treasury. What is cash spot? Cash spot is an interbank market that actually sees a huge transaction, and this market generally comprises three rates: spot rate, cash rate, and TOM. TOM stands for short for tomorrow. Basically, cash rate, ready rate, term rate, spot rate, forward rates, all these rates are settlement prices of cash, term, spot and forward contract जो कि बैंक्स ने पहले कमिट किए होते हैं स्पेकुलेशन रिसर्च के थ्रू, या स्पेकुलेशन रिसर्च करके जो पहले बैंक्स ने कैश, टर्म, स्पॉट, फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं उनके सेटलमेंट के रेट को इस तरह से हम रिस्पेक्टिवली बोलते हैं. इंटरबैंक में जब भी ट्रेडिंग होती है तो बहुत सारे रेट चलते हैं, तो थोड़ा सा हम सब समझ लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट द लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़. बेसिकली क्रॉस रेट्स आर एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज कंप्यूटेड बाय द रेफरेंस ऑफ अ थर्ड करेंसी.
तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस रेट। और थर्ड करेंसी कौन होता है, जिसके रेफरेंस में दो करेंसीज के बीच के रेट को डिसाइड किया जाता है, जनरली अ वेरी हार्ड करेंसी जो मजबूत करेंसी। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो यूएस डॉलर इज वन ऑफ द वेरी important hard currency. So for example, just like US dollar or USD is used to compute the business transaction between India and Finland. Although USD is neither the official currency of India nor the Finland. तो जब थर्ड करेंसी के बेसिस पर दो करेंसीज के बीच के रेट डिसाइड किया था, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस रेट। कैश रेट या जिसको रेडी रेट भी बोलते हैं, दिस इज अ रेट that is quoted for the settlement on the very same day. So the cash rate is quoted for the settlement. Settlement either may be for debit or credit on the same day, that is today itself. So that is called as cash rate. Term rate is quoted and transacted today for the settlement of tomorrow. That is it. That's why it is called as short for tomorrow. And spot rate is quoted and transacted today for the settlement on the second working day, that is trade day plus 2 working days. तो spot rate अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो spot date, that is trade date plus 2 working days. So that spot rate that is quoted for approximately in general 3 days. And what is forward rate? Forward rate is quoted and transacted today for the settlement on any day after spot date. That is a date which falls after trade date plus 2 days. I know this is very complicated, बस इसको ऐसे समझिए, कैश जो रेट होता है उसमें जो कोट किया था वो उसी दिन सेटलमेंट का रेट होता है, टर्म टुमारो वाला, स्पॉट 3 दिन वाला, और फॉरवर्ड हम मान लेते हैं 4 दिन वाला, for a simple understanding. Otherwise there is a technicalities involved into it. अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें, so if today is 4th of May, then the trade date or the cash date will be 4th of May on the basis of cash rate. If today is 4th of May, then the spot date is 6th of May and the term date is 5th of May. That is tomorrow. Tomorrow is 5th of May. And spot date, third date, that is 6th of May. तो इस तरह से जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सेटल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स। तो हुआ क्या है, रिसेंटली जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है इंटरबैंक मार्केट में, जिसकी वजह से जो कैश स्पॉट फॉरवर्ड रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हायर हो गए हैं। सो देयर इज़ अ मेहम इन फॉरवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ dislocation in cash spot points. Cash term is trading at 3.25 paisa, which is equivalent to the yield rate of 16% as per the managing director of IFA Global. And this the usual cash term rate should not be more than 1.5 paisa, but now it is trading at 3.25 paisa. The 1 month premium surged to as high as 8.55%, and that all because of the certain rules and glut of dollar into the interbank market. Although nationalized banks are not receiving the premium and the entire market is a pair now. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बेनिफिट नेशनलाइज बैंक या कोई अदर पार्टिसिपेंट जो इंडिया के वो बेनिफिट अराइज कर रहे हैं या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. नेशनलाइज बैंक्स आर नॉट रिसीविंग एनी प्रीमियम एंड दे आर इंटायरली working as a pair in the market. As such, dollar rupees was sold to 73.95 level from the high of 74.32 as per the different experts. And this is the graph that is actually showing the dollar rupee forward premium rates. So this blue line is of 27th of April and this red line is of 3rd of May. And we can see the difference in terms of dollar rupee forward premiums. So because of the dollar surge, there is a unusual move into cash, term, spot and forward rates. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 6. Reality to feel the pinch of rising steel and cement prices. जिस तरह से सीमेंट और स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट रियलिटी सेक्टर में देखने को मिलेगा, रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रहा है. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल स्टील एंड सीमेंट कुड कॉस्ट अ शेड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाईवेज एज वेल एज द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिससे कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर
को लेकर के जो एम्बिशियस टारगेट है इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जो असर फंड रेज करने की बात हुई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात हुई जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, फिलहाल के लिए उन सारे प्रोजेक्ट्स पर जो हाईवेज हो गए, रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर डीले हो सकते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं. इन केस ऑफ रोड अ मेजॉरिटी आर बीइंग मेड ऑन bitumen. Therefore, there won't be the impact on cost, but as far as bridges are concerned, where steel and cement are one of the major important raw material, there could be the huge impact because of the increase of these raw material. अब क्योंकि प्रोजेक्ट पहले जो सेंक्शन हो चुके थे वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे सेंक्शन हुए थे, अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट की जो इंटायर कॉस्ट है वो चेंज हो रही है. तो ऑफिशियल्स डिड नॉट प्रोवाइड एनी एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट एस्केलेशन एंड सेड इट वुड डिफर फ्रॉम वन केस टू अनदर. तो केस वाइज वेरिएशन होगा डेफिनेटली, जिसमें जितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होगा या होगा उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट की टोटल और ओवरऑल कॉस्ट आएगी वो एस्केलेट करेगी. The Ministry of Road Transport and Highway charges a 10x toll rate for major bridges and structure under its tolling policy. और जितना अभी टोल कलेक्ट करने का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग द करंट और जो कॉस्ट लग रही है, तो करंट कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर फॉर भारत माला प्रोजेक्ट इज 15 to 20 करोड़. तो पर किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 करोड़ की कॉस्ट या हम कह सकते हैं लागत आती है. ऑन द अदर हैंड जो टोलिंग कलेक्शन, जो टोल के लिए जो पॉलिसी है उसके अगर हम देखें तो देयर इज़ अ मिसमैच. जितना कॉस्ट लगेगी उतना रेवेन्यू जनरेट करने में चैलेंजेस आएंगे. दिस सजेस्ट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 150 to 200 करोड़ a kilometer. However, some experts say that structure cost vary widely depending on the design choice also. But अगर वेरिएशन की भी बात देखें तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आता. अगर वेरिएशन आता भी है तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25% का वेरिएशन देखने को मिल सकता है एट मैक्स. और इतना वेरिएशन नहीं आएगा कि एक जो सड़क का या रोड का प्रोजेक्ट है वो बनाने में 15 करोड़ लगेगा और एक को लगाने में 100 करोड़ लगेगा. बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. हाँ, ब्रिजेस के केस में कॉस्ट ज़्यादा वेरी कर सकती है. जैसे कि कोई एक प्लेन टेरेन हो वहाँ पर ब्रिज को कॉस्ट बिल्ड करना हो और एक हिमालय जैसी लोकेशन हो, हाई टेरेन हो जहाँ पर ब्रिज को बिल्ड करना, तो डेफिनेटली ब्रिज के केस में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है. तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हों या रोड के प्रोजेक्ट हों, जो अपने कंस्ट्रक्शन की एकदम इनिशियल फेज में हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो रॉ मटेरियल, जो स्टील और सीमेंट के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे. और जो प्राइस रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% तक हायर हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग दिस रॉ मटेरियल. अगर हम बात करें स्टील की या सीमेंट की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाई द प्राइसेस ऑफ स्टील एंड सीमेंट इज इंक्रीजिंग रिसेंटली. व्हाट इज द रीजन व्हाई suddenly the price of steel and cement has started increasing into the domestic market? Although the reasons are very simple, you write it on comment box. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. OPEC shares of Indian oil import plunged to 2-decade low. So OPEC share of India oil imports fell to the lowest in at least 2 decades in the year to the end of March, as overall purchase by Asia's third largest economy fell to 6-year low. तो रिसेंटली इंडस्ट्री और ट्रेड का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है ओपेक से, ओपेक का फुल फॉर्म ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो उससे जो इंडिया का जो शेयर है, इंडिया जितना इंपोर्ट करता था, इंडिया का मेजर इंपोर्ट क्रूड ऑयल है. अगर आपको पता होगा तो हमारा मेजर जो पैसा जाता है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में ही जाता है. तो इंडिया जो क्रूड ऑयल जितना इंपोर्ट करता था वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है और अभी तक के लास्ट 20 सालों में सबसे कम इंडिया का शेयर रहा है इनटू ओपेक शेयर फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल्स. जो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसको कहा जाता है दैट इज़ इंडिया फेल टू अ 6-year लो. तो वर्ल्ड का जो थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है जो कि इंडिया को बोलते हैं, उसका जो इंपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.97 मिलियन बैरल पर डे तक कम हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 to March 30, and it was down 11.8
8% इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर डेटा। हालांकि अगर हम पिछले साल की बात करें, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो लो बेस इफेक्ट यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है, बट फिर भी एक नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में 2019 के अगर हमसे कंपेयर करें तो भी हमें इंपोर्ट कम होता हुआ दिख रहा है। और इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर क्रूड ऑयल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंपोर्टेड आइटम्स में से या कमोडिटीज़ में से एक है, अगर इंडिया में इंपोर्ट गिर रहा है तो इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वी आर बिकमिंग मोर रिलायंट ऑन आवर सेल्फ, कि हमारा इंपोर्ट कम हो गया है। दैट इज समवेयर इंडिकेटिंग द रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट हो रही हैं और हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या कुछ ऐसी इंटरनेशनल या नेशनल फैक्टर्स हैं जो कॉज कर रहे हैं कि इंडिया को इम्पोर्ट करना कम पड़ा। ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, इसलिए इम्पोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है और इसीलिए कंटिन्यूसली इम्पोर्ट फॉल कर रहा है। हालांकि इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि इंडिया पहले जितना ओपेक नेशन से इम्पोर्ट करता था, डिपेंडेंसी ज़्यादा थी ओपेक नेशन में, अब इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने ऑयल इंपोर्ट को। मींस पहले क्या था, जो इराक से या सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था, हमारी डिपेंडेंसी उन पर बहुत ज़्यादा हाई थी। बट इराक को लेकर के जो इश्यूज जनरेट हुए थे, अमेरिका के सैंक्शन लगा था, उसके बाद इंडिया का जो इंपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था उस पर्टिकुलर कंट्री से। तो इंडिया ने एक अदर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी कि डाइवर्सिफाई करना, रादर दैन बिकमिंग टू रिलायंट ऑन वन कंट्री और वन ग्रुप, इंडिया शुड डाइवर्सिफाई इट्स ऑयल इम्पोर्टर सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, इंडिया की जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो रिड्यूस ना हो, वो इंटरप्ट ना हो। ऑन द अदर हैंड कुछ जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, जैसे कि इंडिया ने जब सऊदी अरेबिया या ओपेक नेशन से डिमांड करी थी रिसेंटली कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे उसको रिड्यूस करने की, क्योंकि ओपेक नेशंस ने, ओपेक प्लस नेशंस ने रिसेंटली जो प्रोडक्शन था, वो सप्लाई था, वो रिड्यूस कर दी थी, कम कर दी थी, जिससे कि ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़े थे और उसका इम्पैक्ट इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा था, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस के फॉर्म में, इंक्रीज डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में फॉर्म में। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी सऊदी अरेबिया से कि वो सप्लाई को इंक्रीज करें, जिससे कि जो प्राइस शूट आउट कर रहे हैं वो मैनेज हो सके और इंडिया की जो रिकवरी, नेशन रिकवरी स्टेज है आफ्टर कोविड, उसको पुशअप किया जा सके। हालांकि सऊदी अरेबिया ने क्लियरली मना कर दिया था, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को इवन ये डायरेक्ट किया था कि आपने जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में फर्स्ट फेज में जो पेट्रोल के प्राइस या क्रूड ऑयल के जो प्राइस क्रैश हुए थे, उस ड्यूरेशन में जो आपने सस्ता पेट्रोल खरीदा था, वाई यू आर नॉट यूजिंग दैट पेट्रोल इंस्टेड ऑफ आस्किंग अस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। तो इस तरह के कई सारे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी होती हैं। तो किसी एक कंट्री पर या किसी एक ग्रुप पर अपने क्रूशल कमोडिटी के लिए रिलाई करना इज़ नॉट अ वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी और नॉट अ वेरी गुड foreign policy approach. That is why India started diversifying its oil imports. So India bought more US and Canadian oil at the expense of that from Africa and Middle East. तो जितने भी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे अप्रॉक्सीमेटली 2.86 मिलियन बैरल पर डे का रिडक्शन करते हुए इंडिया ने यूएस और कनाडियन और जो ऑयल हैं उनको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो दिस ओपेक नेशन से जो शेयर है इंडियन ऑयल इंपोर्ट का वो प्लंज कर रहा है, इट इज रिड्यूस अप टू 2 डिकेड्स लो। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर हम बोलें तो पहले इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट था वो इन्हीं मिडिल ईस्ट या अफ्रीकन नेशन से करता था या ओपेक नेशन से करता था, बट अब वो रिड्यूस होकर 70 to 72% तक आ गया है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ अदर रीजंस। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो पिछले 20 सालों में दिस इज़ द लोवेस्ट। 2001 से 2002 का जो फिस्कल ईयर था उसके कंपैरिजन में सबसे कम शेयर है इंडिया का ओपेक में। और इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं और पहले से क्यों नहीं कंपेयर कर, क्योंकि इससे पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। इंडियाज रिफाइनर्स आर डाइवर्सिफाई परचेज टू बूस्ट मार्जिन and having upgraded plants to process cheaper
tougher crude grades, but refinery runs were hit as the pandemic curbs the fuel consumptions. As I told you, there are number of reasons. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ओपेक नेशन पसंद नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ कंजप्शन भी पैंडमिक की वजह से रिड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमें ये शॉर्टफॉल या ये रिडक्शन देखने को मिल रहा है. So there is an interplay of number of factors. ऑल्दो इंडिया ने अपने यहाँ की जो रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी है उसको भी चेंज किया, जैसे कि जो कनाडा जो यूएस के ऑयल है जो कि जनरली लो ग्रेड ऑयल कहा जाता है, जिसमें सल्फर कंटेंट और अदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती है, तो उसको देखते हुए इंडिया ने अपनी रिफाइनरी टेक्नोलॉजी पर भी ज़्यादा काम किया, जिससे कि जो लो ग्रेड ऑयल है उनको रिफाइन किया जा सके एट अ चीपर कॉस्ट. ओके, बेसिक रीज़न ये है कि इंडिया की जो रिलायंस है, इंडिया अपना रिलायंस जो है वो ओपेक नेशन पे कम करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बिंग रीज़न रहता है ग्लोब का. वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कभी कभी कॉलेजियम सिस्टम भी देखने को मिलता है कि वो आपस में उन्होंने कार्टेल फॉर्म करके रखा है, और जब मन चाहता है वो अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं और जब मन चाहता है सप्लाई कम कर देते हैं. So the share of Middle East producer rose about 62% in 2020 year from 60% in the previous year as the refiner took committed volume under the annual oil contracts. Although the country's annual fuel demand in 21 fell for the first time in the last 23 years. तो डिमांड भी फॉल कर रही है क्रूड ऑयल की. इंडिया डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, इस सब वजह से हमें इंडिया का जो फिलहाल का शेयर है ओपेक नेशन में वो कम देखने को मिल रहा है. अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज क्लिप्स. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इम्प्रूव्स मार्जिनली. सो ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक ऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन डिप हैज एक्चुअली सबड्यूड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला था. बट जो अभी रिसेंट डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMI भी बोलते हैं, रोज मार्जिनली टू 55.5% आफ्टर फॉलिंग टू 7 months लो ऑफ 55.4%. सिर्फ हम कहें जीरो मतलब 0.1% का इंक्रीज देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू द मार्च, बट एल्बिट इट इज़ इंक्रीजिंग. जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में ये 50 के भी नीचे जाएगा, एंड वी ऑल नो 50 के नीचे का पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्शन इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, 50 के ऊपर एक्सपेंशन. तो अभी तक हमें कह सकते हैं उसने डेकोरम मेंटेन करके रखा है, स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है. एंड द बेसिक रीजन, न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर ग्रू द फास्टेस्ट सिंस अक्टूबर, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला. और जो ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा था कि कोविड-19 की सेकेंड में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, वैसा नहीं हुआ. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ई-वे बिल्स में फॉल टू 5 months लो. तो जहाँ हमारा PMI जो है वो मेंटेन है, जो ई-वे बिल्स हैं वो फॉल किए हैं, लाइकली टू डिक्लाइन 55 to 58 million इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड लॉकडाउन. अगर जो लोकल जो हमारे स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स का लोकलाइज्ड लॉकडाउन है उसकी वजह से जो ई-वे बिल हैं वो उनमें रिडक्शन देखने को मिला. ई-वे बिल में रिडक्शन देखने को मिला, सिंपली सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन, गुड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, स्टेट्स के बीच में एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लोकलाइज्ड लॉकडाउन. तो अनसर्टेनिटी डेवलप हुई है, तो जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, उन्होंने फिलहाल के लिए अपने शिपमेंट्स जो हैं, अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है, कंसाइनमेंट्स हैं, उनको रोक दिया है, एंड दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज ई-वे बिल्स. सो ई-वे बिल्स जनरेट विच इज रिलेटेड टू पेइंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड अ की हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी may have fallen to 5 months low in the month of April as some cities experienced lockdown due to the surge in COVID-19 cases. तो हालांकि नेशन वाइज लॉकडाउन अभी भी नहीं हुआ, लेकिन अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं डेवलप है पब्लिक के माइंड में, बिजनेस जो ओनर्स हैं उनके माइंड में, इन्वेस्टर्स के माइंड में कि पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए. तो दैट इज़ वाई सब ने अपने कंसाइनमेंट्स रोक दिया, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोक दिया. ऑन द अदर हैंड कुछ स्टेट्स में लोकल लॉकडाउन लगा हुआ, जिसकी वजह से डिमांड पर भी फर्क पड़ रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. अर्ली साइन ऑफ कोविड केसेस स्लोइंग डाउन इन 13 स्टेट्स. तो कुछ स्टेट्स में कोविड के केसेस डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं एज पर द डेटा. एक्चुअल ग्राउंड में कितना हो रहा है इट्स एक्चुअली नॉट नोन टू एनीवन, बट अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो लेस देन 50,000 केसेस अप्रॉक्सीमेटली 17 स्टेट में हैं, 50 to 1 lakh 7 स्टेट्स में, मोर देन 1 lakh 12 स्टेट्स में. तो
कुछ 13 केसेस में हमें कह सकते हैं कि कोविड के केसेस डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर केस पॉजिटिविटी की बात करें, कितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं टोटल जो टेस्टिंग हो रही है उसमें, तो कि 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 15% है। मतलब जितने भी अगर 100 टेस्ट लोगों के टेस्ट हो रहे हैं तो 15 केस उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे 22 स्टेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। 15 से कम 9 स्टेट्स हैं और 5 से कम 5 स्टेट्स हैं। तो थोड़ा सा वेरिएशन भी है स्टेट वाइज जो केस आ रहे हैं, इमरजेंस हो रही है उसमें। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को लेकर के अदर कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो भाग गए हैं, चले गए हैं इंडिया छोड़ करके, इसी फेयर से कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कोविड 19 वैक्सीन या कोविड शील्ड की सप्लाई को लेकर के। और उन्होंने उसको क्लियरली जा करके बाहर, जब वो इंडिया से बाहर निकल गए तो उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया कि हाई पावर जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर कंटिन्यूसली प्रेशराइजिंग हिज फैमिली और इवन द मिस्टर पूनावाला जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, उनको तो उन्होंने बोला दे विल कम बैक आफ्टर फ्यू टाइम्स वन थिंग्स विल बी सेटल। और अगर एडवांसेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली उन्हें 100 मिलियन डोजेस का एडवांस मिल चुका है फॉर वैक्सीन। तो वैक्सीन सप्लाई को, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंडिया बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत ज़्यादा अब युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। हर स्टेट डिमांड कर रहा है वैक्सीन की। ऑल्दो अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन या मास वैक्सीनेशन इनॉकुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोविड पैंडेमिक लीव्स अनदर 7 मिलियन जॉबलेस। तो सेकेंड वेव जो आई है उसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 4 मंथ्स तक का हाई हो गया है। पिछली बार रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था जिसकी वजह से डिमांड एकदम से फॉल कर गई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी जो जॉबलेस है या जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 8% तक का जॉबलेस रेट रहा है इन द इंडियन इकोनॉमी। और इसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो जैसे अभी हमने बताया कि ई वे बिल्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं, ई वे बिल वो रिड्यूस हो रहे हैं। पीएमआई जो प्रोडक्शन, जो न्यू ऑर्डर्स हैं उनकी डिमांड भी फॉल कर रही है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी डिप कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस कर रही हैं। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास ऑर्डर नहीं है तो उनको प्रोडक्शन नहीं करना है, प्रोडक्शन नहीं करना, दे डू नॉट रिक्वायर वर्क फोर्स। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है because of not lockdown but because of the decrease or subdued demand into the economy। और अनसर्टेनिटी है इसलिए भी डिमांड भी नहीं है, अनसर्टेनिटी भी नहीं है। इन्वेस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस को पता नहीं है कि कब लॉकडाउन लग जाएगा, कितने टाइम तक लगेगा, कोविड के केस कब तक बढ़ेंगे, किस स्पेस में बढ़ेंगे। तो इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से इवन साइंटिस्ट आर ऑल्सो नॉट एबल टू गिव द एक्यूरेट पैटर्न फॉर कोविड-19 केसेस की कब बढ़ेंगे, कब इनकी पीक आएगी। ऑल्दो ऐसा कहा जा रहा है कि 15 मई तक पीक आएगी, बट स्टिल there is no certainty, and because of this uncertainty in the economy, number of high frequency indicators are getting downgraded, and into which employment rate is definitely increasing, and that is up to 4 months high. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. If you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.